Hello everyone, I welcome you all again on the YouTube channel of TechUpGate classes. So this is all about me, and we were studying about the machining and the machine tool operations. In the last lecture number 17, we discussed about the time calculation part of the horizontal and the milling machine, and we also saw some of the numerical problems along with the uncut chip thickness. Okay, so that thickness basically in the whether we are talking about the up milling or the down milling, the thickness is varying from 0 to maximum or maximum to 0. So there will be a average uncut chip thickness value, so that we calculated. And today in the lecture number 18 we are going to discuss about again the milling machine, but this is the last lecture, okay, on the milling machine. So this indexing, okay, today we are going to discuss about the complete chapter lecture is based on the indexing only. So in indexing basically this topic is very important from the gate and the gate as well as engineering services examination point of view. Okay, ESE, because a number of objective questions has been asked previously in the ESE examination, and theoretical question has also asked in the conventional examination that what is indexing, what types of the indexing are available. So just describe that, but numerical इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, so that's why there is a possibility that this question can be asked in the gate examination as well. ठीक है, तो देखिए if I told you in the very first lecture that आपका जो ये topic है, this is just written a name, okay, and by the way like this is the fourth lecture on the milling machine itself. Before that we have covered lathe and the drilling. Now shaper and the grinding is still remaining, a few others as well. So अगर आप चैप्टर वाइज देखेंगे, लेक्चर वाइज देखेंगे, it takes like 5 to 6 hours. Okay, so one topic is nothing but it covers 5 to 6 hours. तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक स्मॉल टॉपिक भी अगर उसमें है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज लाइक इंडेक्सिंग है तो आपका बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इजी चैप्टर है आपका. Okay, and I will try that all the things in very simplest way to explain you guys. Okay, so I will cover all the objective questions in this lecture as well of the ESE examinations, as well as one of the question has been asked in the gate as well in the PI, so that will also cover. One more thing that along with the mechanical student, PI student can also join this video or lectures. Okay, so once again I welcome you all on the Let's Crack the Gate along with the TechUp faculties. Okay, so let's start. ओके, सो जस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि इंडेक्सिंग होता क्या है. देखिए आपका कोई भी एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, देन मान लीजिए कि इफ यू वांट टू मेक गियर और ग्रूव, लाइक if you want to make the grooves like this type of the groove over the surface of the cylindrical body, okay, and like gear you want to form over the disc, okay, and if any kind of V kind of slots if you want to make like this, okay, whatever the geometry that on the cylindrical part, on the cylindrical workpiece you have to form slot, woodruff, key, whatever it is. So for that basically we are using the indexing, but this indexing we are using in the drilling only. Okay, now ये यूज क्यों कर रहे हैं पहले ये भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए if we talks about the lathe machine, okay, then there is a workpiece is rotating and we are giving a reciprocating feed to the tool. Okay, if we talks about the drilling machine, then workpiece is stationary, tool is rotating and we are giving the reciprocating motion to the tool itself. Okay, and when we are talking about the drilling machine, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है या फिर आपने अगर कहीं बुक से भी रीड किया होगा बिफोर द इंडेक्सिंग, तो आपका जो वर्कपीस होता है दैट्स जस्ट रोटेटिंग and you are giving a feed to the your tool is just rotating at its place and you are giving a feed to the workpiece. ठीक है, मान लीजिए आपका tool है, this is rotating or either it is this is rotating, then you are giving a feed to the workpiece. Okay, but हमें क्या है कि in this portion we want that there should be rotation of the workpiece is also affiliated, मतलब the rotation, the workpiece should also rotate. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूल को अब रोटेट नहीं करेंगे, टूल तो ऑलरेडी रोटेशन में है, ठीक है. अगर टूल को रोटेशन नहीं होता तो हम ऐसा अपोजिट नहीं करते, मतलब अपोजिट नहीं कर रहे हैं. अपोजिट का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप नाउ यू आर रोटेटिंग द वर्क पीस एंड गिव द फीड टू द वर्क, गिव द फीड टू द टूल, ऐसा नहीं है, ठीक है. आप टूल को तो रोटेट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप वर्क पीस को भी रोटेट करना चाह रहे हैं. नाउ यू वांट टू
you want that workpiece should also rotate. For that we are using a different assembly, and this assembly is nothing but we call it as a dividing head. ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू द डिवाइडिंग एंड आई थिंक इंडेक्सिंग इज क्लियर हो गया आपको. इंडेक्सिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, और आपको मैं जैसे जैसे आपको इक्विपमेंट समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा. व्हेन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि व्हेन वी वांट टू मेक द गियर्स, कटर्स, any if you want to make the groove over the surface, if you want to make the keys, then we are using the indexing on the milling machine. ठीक है. now देखिए नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग. बट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको व्हाट आर द एलिमेंट्स और व्हाट आर द असेंबली दैट वी आर यूजिंग इन द ड्यूरिंग द इंडेक्सिंग फॉर द इंडेक्सिंग. ओके, सो दैट आई वांट टू ब्रीफ यू बिकॉज अदरवाइज क्या हो आप once we'll discuss that part, ये जो आपका बाकी कुछ इंडेक्सिंग के पार्ट है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा. मतलब it will be easy for me to understand you, to explain you guys. okay, जिसमें आपका डायरेक्ट इंडेक्सिंग कुछ भी नहीं है, डिफरेंशियल कुछ भी नहीं है, एंगुलर कुछ भी नहीं है, बस आप हम दोनों को डिटेल में इन दोनों को एक्सप्लेन करना है. ठीक है. okay, so first is the dividing head. okay, now this dividing head is nothing but like देखिए आप अभी तक हमने जो पढ़ा है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, तो उसमें हमने वर्क पीस को कहां पे माउंट किया है मिलिंग मशीन में, ऑन द टेबल. okay, there are T slots are available, so we are using the clamping devices. By that we are mounting the workpiece on that table. okay, now what we are doing is on behalf of that table, on behalf of this workpiece, we are keeping a dividing head over the table. okay, now this dividing head is connected with the clamps on the table, fine, in that T slots. so up now this dividing head, complete dividing head, over that below that there is a table, so this table is over that, this is clamp. so ठीक है, आपको ये डिवाइस समझ में आ गया. अब वर्कपीस को कहाँ माउंट करेंगे? अगर पूरा डिवाइडिंग हेड को आपने टेबल पे माउंट कर दिया तो आप वर्कपीस को कहाँ माउंट करेंगे? तो उसके लिए देखिए इनसाइड पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ इसके जो अंदर वाला पार्ट है, देन विल गो फॉर द आउटसाइड पार्ट. तो देखिए दिस इज अ वॉर्म व्हील. ठीक है, this is the worm wheel. Inside that there is a spindle is mounted. देखिए मेरी words पे ध्यान दीजिएगा. worm wheel, inside that there is a spindle is mounted. till now what we were studying that there is a spindle, whether it's vertical or horizontal, over that we are mounting the cutter. but right now we are not talking about the cutter, we are talking about the workpiece. ठीक है. so for that there is a worm wheel. inside there is a we are mounting the spindle, and over this spindle another side, back side to it, because it is a perpendicular, so that will not be visible, and if it will be visible then it will be treated like a circle only. so this is the worm wheel. over that inside that there is a spindle. in opposite to that there is a chuck is there, three-jaw chuck, and in that three-jaw chuck we can hold the cylindrical body like bar or anything else. okay, so cylindrical body we can hold that, but now we are not talking about that part. workpiece part के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. so this is the spindle which is mounted inside this worm wheel. now this worm wheel is connected with the worm. worm किस तरह की होती है आपकी? एक सर्कुलर शाफ्ट होती है. over that we are mounting the teeth. okay, teeth mount कर लेते हैं. now इसमें हमें teeth जो है सिर्फ 4 से 5 ही teeth चाहिए, because we want that because this is stationary, and this if this is stationary then this is just rotating. this is stationary means reciprocating नहीं है, rotating तो है. ठीक है, rotating है तो एक जगह पे rotation है. ठीक है, this is rotating, so we just need the rotation of this one. okay, so these are continuously rotating. The teeth will come in contact with this worm teeth and that will pass over that one. okay, now this worm, this is a worm which is a cylindrical body of this combination or shaft we can say, which is connected with the bevel gear. okay, now bevel gear why we are calling, because this sometimes this outer body which is a pin and all these things, that we are taking some inclined portion. so if we want to transfer the power at any inclination from 0 to 90 degree, we can use the bevel gear. by the way, I told you in the drilling that for the transmission of 90 degree we are using the bevel gear, but that was the special type of that bevel gear. okay, that what we call it as a metric gear. okay, so at angular transmission we are using this bevel gear. now outside this bevel gear it is connected with the indexing plate. so this is very important. we are going to discuss in a detail this one. okay, next is the sector. it's not sector, it's sector arm basically. okay, so next over that basically sector indexing plate is there.
इंडेक्सिंग प्लेट आपका कुछ भी नहीं है, एक सर्कुलर प्लेट है, उसके अंदर होल्स बने हुए हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दैट वन। आफ्टर दैट देयर इज अ सेक्टर आर्म। सेक्टर आर्म किस तरह की होती है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेक्टर आर्म इज लाइक ए लिंक्स। ओके, ये आपकी दो लिंक्स हैं एंड इट्स लाइक अ लिंक्स व्हिच इज मतलब both can rotate with respect to other. Means if I am keeping this one as a constant, then it can rotate like this, and I'm keeping this one as a constant, then sorry, stationary, then it can rotate like this, okay, or like this as well. Fine. So मतलब यहाँ पे क्या होता है, just joint होता है इनके बीच में, ठीक है। So दिस इज एंड सेक्टर आर्म मतलब दो सेक्टर आर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, एक सेक्टर आर्म ये है, दूसरी सेक्टर आर्म ये है, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ लिंक, अ पॉइंट ओनली, अ जॉइंट ओनली। ओके, सो दिस इज अ सेक्टर आर्म। Over that, this is device which is not that much important, but this is important. Okay, this is the pin, and this is the pin basically, and small part of that there is this uh, index pin is there. This is the indexing pin and this is complete, we are calling it as a pin. इसका मतलब क्या देखिए, आपको ये छोटा सा टीथ इसमें दिख रहा होगा पेन पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका इंडेक्सिंग क्रैंक है, जस्ट सर्कुलर पार्ट है एंड इट इज इनसाइडेड दिस वन, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इफ वी वांट टू रोटेट दिस वन, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा बैक साइड में, then you can rotate it and again you can push it inside. Okay, so this is a pin and this is a, sorry, this is the indexing pin and this is a pin complete. Okay, and why we are using, just to insert in a hole. Okay, जो indexing plate होती है उसमें holes होते हैं, I will explain you in a detail, but just for the time being just remember that one. Okay, so this is the assembly that we are using for the indexing purpose. So what I have written over here, that the main first point, that is the main spindle of the dividing head drives the workpiece by means of 3-jar chuck, universal chuck, live center, जैसा मैंने आपको explain किया। Indexing plate consists of a number of holes with a crank pin. I will explain you. Okay, इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग। तो थोड़ा ये जो आपकी आउटसाइड असेंबली थी, ये वाली असेंबली, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भी इसके साथ आ जाएगा। Okay, so this is a crank, this is the pin. Okay, this is the indexing pin. We are calling it as a crank. Okay, now these are the two sector arm, this is the first one and this is the second one. यहाँ से सिर्फ joint के साथ it will be like, looks like I think एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि घड़ी की जो कांटे होते हैं लाइक, ठीक है, so that is, it is rotating with respect to another one, because another मिनट का जो सेकंड का जो कांटा है आपका, that is again and again crossing the minutes. Okay, so it's similar like that. Okay, so one over that we can rotate others, okay, each others. So this is the indexing plate, this is the indexing plate, or next to it there is this worm shaft is connected. Over that, at the end there is a teeth is connected, mounted over the worm shaft, and this is connected with the worm wheel. Okay, worm wheel, this worm wheel has the 40 teeth, this is standard, we cannot do anything in change in that. This is the spindle. Okay, and over that, this spindle in that side, the workpiece is, the jaw is mounted, and over that the workpiece is mounted. But अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग जब what we are doing is, देखिए मैं when I will put this pull this one back side, now at this time I can rotate this one. Okay, using the crank I can rotate this one. Okay, if I will insert it this one, that time I cannot rotate, but when it is back side, now at that time through the crank I can rotate this indexing plate. So what we are doing is, when we will rotate this one, if one revolution is completed, at that time, when this is the shaft which will also rotate, it will rotate, and this will, which is connected, this worm shaft is connected with this worm wheel by this teeth, so that will also rotate. If this will rotate, then what we are getting finally, that when there will be a one complete rotation of this crank, this one teeth which is over here right now, that will travel up to here. Means आपका एक शाफ्ट को, एक क्रैंक को कंप्लीट रेवोल्यूशन पे आपका एक टीथ जो है वो पास हो जाता है आपके क्रैंक, आपकी वॉर्म शाफ्ट से, ठीक है, और वॉर्म व्हील का एक कंप्लीट टीथ ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका मतलब आपका टोटल 40 टीथ्स हैं। इफ यू हैव द 40 टीथ्स इन द वॉर्म व्हील, then how much rotation of the crank is required for the one full revolution of the worm wheel? मान लीजिए कि जब आपने फर्स्ट रोटेशन किया, then it is
फर्स्ट टीथ यहाँ पे आया, देन दिस इज द सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ साइड, इस तरह से आपका 40 टीथ है। तो व्हेन यू विल डू द सेकंड रोटेशन, द सेकंड टीथ विल पास, थर्ड रोटेशन, थर्ड टीथ विल पास। सिमिलरली आपको 40 टीथ को यहाँ पे पास कराने के लिए आपको यू नीड अ 40 रोटेशन, 40 फुल रोटेशन ऑफ द क्रैंक, मींस फॉर वन फुल रोटेशन of worm wheel we needed 40 full rotation of crank। अगर मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि वन फुल रोटेशन ऑफ द वर्म व्हील, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका वन फुल रोटेशन होगा द स्पिंडल विच इज कनेक्टेड विद दिस वन, तो इसका मतलब ये है कि दैट टाइम वन फुल रोटेशन ऑफ द वर्क पीस एज वेल। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि आपका वर्कपीस किस पे माउंटेड है, स्पिंडल पे। स्पिंडल किससे कनेक्टेड है, वर्म व्हील से। सो वन फुल रोटेशन दैट विल बी इक्वल्स टू वन फुल रोटेशन ऑफ वर्कपीस। ठीक है, नाउ ये सब क्यों समझाया मैंने, क्यों क्यों हम यूज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको भी लास्ट स्लाइड में समझाया कि okay like this is cylindrical body, इस शाफ्ट है आपकी। ठीक है, आपको इसके ऊपर स्लॉट कट करना है, थ्रू आउट द लेंथ आपको स्लॉट कट करना है। नाउ यू हैव माउंटेड दिस ओवर द चक। ठीक है, तो आपके कि देखिए पूरी एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, सरफेस है, तो आप इसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली जो स्लॉट है उसको ऐसा फिक्स तो करोगे नहीं कि कहीं पे भी मतलब इसी जगह बनाना है, क्योंकि सिलेंडर है ना, सिलेंडर है तो आप कहीं से भी बना सकते हो। तो मान लीजिए आपने जहां पे फिक्स कर दिया और वहां पे पहला स्लॉट आपने कट कर दिया। नाउ इफ दिस इज द फर्स्ट स्लॉट, यहाँ आपके 4 स्लॉट है टोटल, दिस इज 1 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो आपके फर्स्ट स्लॉट जो है आपने रैंडमली कहीं पे भी कट कर लिया। नाउ फॉर द सेकंड स्लॉट, ठीक है, पहले स्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द फॉर द सेकंड स्लॉट, आपका सेकंड स्लॉट कहां पे कटना चाहिए, सेकंड स्लॉट आपका यहां पे कटना चाहिए, मींस यहां पे कटने का मतलब दैट विल बी 90 डिग्री, एट द 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको कंप्लीट यहां से 90 डिग्री रोटेट करना इसको जरूरी है। फॉर दैट ओनली वी आर यूजिंग दिस इंडेक्सिंग प्लेट एंड ऑल दिस ज्योमेट्री। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल कट करना होता, सिंगल स्लॉट बनाने होते, तो आप कभी इंडेक्सिंग इतना जो झमेला यूज कर रहे हैं आप नहीं करते। ठीक है, बट आपको एक स्पेसिफिक एंगल पे, एक स्पेसिफिक डिवीजन पे, आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपको ग्रूव्स कट करना है या फिर टीथ कट करना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस इंडेक्सिंग। ओके, तो इफ वी आर यूजिंग दिस वन, लाइक फर्स्ट आपका कहीं पे भी आप रखेंगे आपका फर्स्ट लोड कट हो जाएगा। नाउ यू नीड दैट इट शुड रोटेट 90 डिग्री, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द एंगुलर इंडेक्सिंग। ठीक है, अभी मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट जस्ट आई एम टेलिंग। ओके, तो आपकी फर्स्ट इंडेक्सिंग आपने यूज कहां पे की, आपका ये सब जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो ये कहां पे यूज किया, फर्स्ट कि आपका पहला स्लॉट जब कट हो गया, नाउ यू आर गोइंग फॉर द सेकंड स्लॉट, दैट टाइम यू आर यूजिंग द फर्स्ट इंडेक्सिंग, दिस इज योर फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, when you are moving from second to third one, this is also again a 90 degree। जितना भी आपने यहाँ पे क्रैंक को रोटेट किया है from first to second, again you have to rotate in the same direction from second to third one 90 degree। ठीक है, now this is the second rotation of this crank or second division we can say। Now again from third to fourth you have to move, that is again 90 degrees, so in the same direction you have to rotate these cranks। Okay, so that is this is the third indexing, or we can say this is the third division। ठीक है, नाउ आपको इसमें फोर्थ डिवीजन की जरूरत है, आपको आपके 4 स्लॉट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सो देयर इज नो नीड फॉर द फोर्थ स्लॉट, बिकॉज़ ये तो आपका ऑलरेडी था, बिकॉज़ देयर इज नो नीड फॉर द इंडेक्सिंग ओवर हियर फोर्थ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि मुझे कैपिटल N प्लस 1 रोटेट मतलब इन स्लॉट्स कट करने हैं, देन हाउ मेनी डिवीजन शुड बी रिक्वायर्ड, कैपिटल N प्लस 1, अगर मुझे कैपिटल N प्लस 1 अगर मुझे पूरा थ्रेड्स चाहिए या फिर स्लॉट्स कट करने हैं, तो मैं कितना उसको रोटेशन करूंगा, यहाँ पे कितना था 4, आपने कितना रोटेशन किया 3, मतलब 4 - 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3, तो n + 1 - 1 दैट विल बी इक्वल्स टू n। ये जो ये फॉर्मूला लिखा है रोटेशन ऑफ द इंडेक्स क्रैंक दैट विल बी इक्वल्स टू 40/n, ये वही चीज है। ठीक है, अब ये 40 कहां से आया है, ये 40 यहां से आया है, 40 फुल रोटेशन ऑफ द क्रैंक।
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको या यू कैन टेक दिस रेशियो दैट वन, यहां से आपको गियर रेशियो निकल जाएगा, दैट इज वन फुल रोटेशन ऑफ द वार्म व्हील दैट विल बी इक्वल्स टू 40 into वन फुल रोटेशन ऑफ द क्रैंक। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू गियर रेशियो दैट विल बी इक्वल्स टू वार्म व्हील रोटेशन ऑफ द वार्म व्हील अपॉन रोटेशन ऑफ द क्रैंक दैट विल बी इक्वल्स टू 40। तो ये आपका गियर रेशियो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नाउ हाउ मेनी डिविजन्स वी हैव टू डू ऑन द सर्कुलर पेरीफेरी, नाउ इट डिपेंड्स। अगर मान लीजिए एक करना है आपको, एक ही बार रोटेट करना है तो 40 you have to use, अगर दो divisions करने हैं, now it will vary accordingly. Okay, so this thing is clear to you now that how this, why this 40 by n is we are writing over here. तो इसमें ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट था, दिस इज इंडेक्सिंग प्लेट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ होल्स विद अ क्रैंक पिन। अभी ये भी नहीं समझ में आया तो ये मैं थोड़ा यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए, इंडेक्सिंग प्लेट जो होती है आपकी इस तरह से होती है। ठीक है, नाउ अब ये क्या है ये मैं समझाता हूँ यहाँ से कि देयर आर two types of the indexing plates are available to us. That is, first is the Brown and the Sharpe milling machine for the Brown and the Sharpe type, and second is the Cincinnati and the Parkinson type. ठीक है, now Brown and Sharpe में क्या है कि आपकी उन्होंने means after the conducting the experiments only they propose these things. Okay, so please do not उनकी काबिलियत पे शक मत करिएगा। First plate number 1, plate number 2 and the plate number 3, they proposed 3 plates and in which plate number 1 these were the holes। अब ये क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ, तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ आपको, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्लेट है एक, ठीक है, इंडेक्सिंग प्लेट है आपकी। ठीक है, आपको इक्वल डिस्टेंस पे कुछ सर्कल्स चूज करने हैं। मान लीजिए ये यहाँ से आपने इनिशियली कुछ सर्कल ले लिया यहाँ तक, ठीक है, देन आफ्टर दैट देयर इज अ इक्वल इंडेक्सिंग, यू आर टेकिंग सम सर्कल्स। ओके, नाउ इट डिपेंड्स कि पहले में कितना 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स उन्होंने चूज किए हैं। ठीक है, नाउ एज आई सेड it is not choose randomly, they have choose on the experimental basis only. Okay, now what is this 15 16 17 18 19 and 20? देखिए, ये जो फर्स्ट सर्कल है, मान लीजिए कि आप इसको रेफरेंस मानते हैं, तो ये जो फर्स्ट सर्कल है आपका यहाँ से, इसमें काउंट करिए कितने होल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब इसमें 15 है तो नेक्स्ट वाले में 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब क्या है दूसरी, इसमें एक और चीज में समझा देता हूँ कि अगर आप इस प्लेट को देखेंगे, देखिए ये थोड़ा फ्रंट व्यू था, ये थोड़ा 3D से लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसकी कुछ थिकनेस है, बाय द वे दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल, सो दैट दिस होल्स आर यू कैन, मतलब आप ये जो होल्स है छोटे छोटे से, आप इनको थ्रो आउट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स मान लीजिए कि आपकी ये वाली एक तरह की एक प्लेट होगी। ठीक है, इस तरह की एक प्लेट होती है, मोबाइल है मेरा, लेकिन जस्ट मानिए कि इतनी थिकनेस की एक प्लेट होती है, तो आपने मान लीजिए कि यहाँ पे कोई होल किया हुआ है, इस तरह से कोई होल है। ठीक है, तो इस होल को आप थ्रो आउट भी तो कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए इधर आपकी पूरी असेंबली है, तो आप चाहे इसको इस तरह से माउंट करें चाहे इस तरह से माउंट करें, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज 15 16 17 18 19, दिस थिंग्स इज क्लियर टू यू। नाउ सिमिलर प्लेट, इसी तरह की प्लेट्स क्या होगी, आपकी सेकंड प्लेट होगी जिसमें आपका 15 से स्टार्ट ना होके 21 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे इस पे 21 होल होंगे, देन 23 जो भी इसका इंडेक्स 23 27 29 31 33 होल्स इस तरह से होंगे। सिमिलरली प्लेट 3 के लिए 37 से स्टार्ट होगा और 49 तक होगा। इन्होंने इसका कंस्ट्रेंट रखा है कि ये 49 तक हो सकता है। ठीक है, अब सिंसिनाटी एंड पार्किंसन ने क्या किया है कि इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा दिया है। अब देखिए, जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर दिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगुलर की विड्थ आपने थोड़ी बढ़ा दी है, तो ये आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई और यहाँ पे आपका साइड 1 हो गई, आपकी साइड 2 हो गई। तो मान लीजिए आपकी साइड 1 है और ये साइड 2 है, तो साइड 1 मतलब ये प्लेट है आपकी। ठीक है, और यहाँ से जो भी आपका एक सर्कल है, ठीक है, उस पे आपने एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए, क्योंकि आपकी जो पिन जो आप इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी स्मॉल लेंथ। ओके, मतलब उसकी थिकनेस या लेंथ उसकी बहुत कम है, सो इट कैन इजीली इंसर्ट इनसाइड। ओके, सो नाउ
इसमें जो फर्स्ट होल स्टार्ट होगा दैट इज साइड 1 में, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24, देन 25, देन 24 यहाँ पे कर लीजिए, 25 यहाँ पे होगा, 26 के लिए यहाँ पे सर्कल होगा, 30 के लिए यहाँ पे, 34 के लिए यहाँ, 37 के लिए यहाँ, इस तरह से मतलब अप टू 43 साइड 1 हो गया। देन साइड 2 के लिए मतलब आप क्या करिए, इसको पहले आप इधर सर्कल बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है, इसमें होल्स बना रहे थे, दैट विल नॉट बी विजिबल बैक साइड बिकॉज आपका इसकी थिकनेस ज्यादा है, आपने जो लेंथ इंसर्ट मतलब जो ड्रिल किया हुआ है इन होल्स के लिए दैट इज आल्सो लेंथ ऑफ दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वी आर जस्ट टेकिंग दैट वन कि आपका पिन इंसर्ट हो जाए, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रोटेटिंग दिस वन एंड यू आर डूइंग द होल्स फ्रॉम 46, यहाँ पे एक सर्कल लीजिए, उसमें 46 होल करिए, देन 47, देन 49, देन 51, 53, 55, 7, 58, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द साइड वन, सो दिस इज नथिंग बट द प्लेट वन ओनली, okay, this is plate 1 of the side 1 side 2, plate 2 side 1 side 2, plate 3 side 1 side 2, ठीक है। I think it's clear to you, ये plates आपको समझ में आ गई, ठीक। crank and the plates consist of a number of holes with the crank and the pin, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। index cranks drive the spindle, ठीक है, जब आप इसको crank को rotate करेंगे that will drive the spindle indirectly, ठीक है, लाइव सेंटर थ्रू अ वॉर्म गियर व्हिच हैज अ 40 टीथ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। एज अ रिजल्ट अ फुल रोटेशन ऑफ द वर्कपीस इज प्रोड्यूस्ड बाय 40 फुल रिवोल्यूशन ऑफ द इंडेक्स क्रैंक, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। देखिए अब मैं टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग पे जाता हूँ। देखिए डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या है कि मान लीजिए कि आपको अगर कोई प्लेट है जिसमें मान लीजिए कि 24 होल्स हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपका 24 होल्स है तो मान लीजिए आपको मतलब मतलब आपको दो ही स्लॉट करना है, दो ही स्लॉट करना है, या फिर मान लीजिए 4 स्लॉट करना है, या फिर मान लीजिए 6 करना है, 8 करना है, 12 करना है, या फिर 24 करना है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है आपका, क्योंकि देखिए 24/2 आपका डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, 24/4 आपका 6 आ रहा है, 24/6 आपका 4 आ रहा है, 24/3 8 आपका 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अगर डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल रही है, सो फॉर दैट देयर इज नो नीड टू यूज द वॉर्म व्हील, ओके, व्हाई, बिकॉज आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट को जो हमारे पास असेंबली है डिवाइडिंग हैंड की, आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट को या फिर क्रैंक को थ्रू इंडेक्सिंग प्लेट आप स्पिंडल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू यूज द वॉर्म व्हील फॉर दैट, ओके। तो ये तो आपका हो गया सिंपल डायरेक्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। अब आपका ये थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मेन जो है आपके ये दोनों ही हैं, सिंपल और कंपाउंड इंडेक्सिंग, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वाला, इसी तरह से आपको इनमें भी मैं कर दूंगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग फॉर द सिंपल इंडेक्सिंग, ठीक है। नाउ सिंपल इंडेक्सिंग के लिए, ओके, तो सिंपल इंडेक्सिंग के लिए हम लोग जो अभी एक फॉर्मूला देखा है दैट इज 40/n, दैट इज रोटेशन ऑफ द क्रैंक, दैट हाउ मेनी रोटेशन ऑफ द क्रैंक इज रिक्वायर्ड, तो दैट विल बी दैट हाउ मेनी means how many divisions we have to do and how many threads or the gear or the slots that we have to form, so that will be like अगर मान लीजिए कि मेरे पास मुझे 7 स्लॉट्स बनाने हैं, तो फॉर दैट आई वी नीडेड 6 डिवीजन, ठीक है। तो 40/n का मतलब है 40/6 हियर, ठीक है। देखिए अब आपको ये पता लगेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हम इतना बड़ा यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये जो होल्स हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो फॉर दैट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिंपल इंडेक्सिंग एंड दिस कंपाउंड इंडेक्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लाइक 40/n, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड जब करेंगे, सो दिस विल बी लाइक हाउ मेनी टाइम्स इट विल कंप्लीट डिवाइड, this is 40/6, it means that 6 into 6 that is 36. What is the remainder? Remainder is 4, that is 40 minus 36, that is 4 upon 6. It means ये जो टर्म आई है ना आपकी, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे क्या करना है, आपको 6 डिविजन है यहाँ आपके, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, 6 डिविजन है, मान लीजिए 7 डिविजन होते तो इसका मतलब क्या हो जाता, 40/7 that will be equals to 5 times that is 35, how much remaining, that is 5/7, ठीक है। तो ये जो टर्म्स आई हैं इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या है, क्योंकि यही इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है फर्स्ट दैट इज फुल, मतलब कंप्लीट जितने बार इसमें डिवाइड हुआ है, दैट वी कॉल इट एज अ फुल रोटेशन, वी कॉल दिस एज दैट इज फुल रोटेशन ऑफ क्रैंक, सॉरी
फुल रोटेशन ऑफ क्रैंक। मीन्स अगर यहाँ पे 6 आया है या फिर यहाँ पे 5 आया है तो दिस मीन्स कि अगर मान लीजिए आप जब इसको यूज कर रहे हैं तो दैट टाइम 6 फुल रोटेशन ऑफ द क्रैंक इज रिक्वायर्ड, मतलब 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6। ओके, नाउ मतलब फर्स्ट लोड आपका कंप्लीट हो चुका है ना, मतलब आप स्लोड बना रहे हैं अगर शाफ्ट पे तो फर्स्ट लोड आपका कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट आपको टोटल कितने बनाने हैं, 7 बनाने हैं, ठीक है, 7 बनाने हैं। 7 के लिए आपको कितने डिवीजन चाहिए, 6 डिवीजन चाहिए। फर्स्ट इज कंप्लीटेड, नाउ फॉर द सेकंड डिवीजन, फॉर द सेकंड मेकिंग ऑफ द स्लोट यू हैव टू मूव हाउ मच टाइम, मतलब जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट इज 90 डिग्री यू हैव टू रोटेट, तो उसमें तो चलिए डिग्री था तो आसान था, ठीक है, कि आपको यू हैव टू फर्स्ट इंडेक्सिंग जो होगी दैट इज आफ्टर 90 देन सेकंड अगेन आफ्टर 90, बट इसमें आपका कितना रोटेशन आपका होगा दैट इज वी कैन नॉट से दैट वन। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, मान लीजिए आप 7 बना रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 एंड दिस इज 7, ठीक है, इस तरह से आप स्लोट बना रहे हैं। तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, दिस द फर्स्ट रोटेशन दैट यू हैव टू डू। फर्स्ट रोटेशन मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग है आपकी, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्सिंग के लिए आपको पहले सबसे पहले 6 फुल रोटेशन करने हैं। देन इसका क्या मतलब है, इट मींस दैट 4 holes in 6 whole circle plate, 6 whole circles। ओके, आप इसको इस तरह से रीड करिए। इसका पूरे का रोटेशन मैं बता देता हूं, दैट इज 6 full rotation of crank and 4 holes in 6 whole circle, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, 6 फुल रोटेशन ऑफ द क्रैंक। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं कि मान लीजिए 4 होल सर्कल, 4 होल्स इन 6 होल सर्कल। इसका मतलब है कि आपकी जो ये 15 वाली है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका 6 भी होता, मान लीजिए यहाँ पे 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो जो 6 होल सर्कल है इसका मतलब है 6 होल, ये जो है अगर यहाँ पे 15 लिखा है मतलब 15th होल सर्कल में आपको कहां पर मूव करना है, मतलब अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो 6 होल सर्कल में मतलब 6 होल जो सर्कल है आपका, ये जो सर्कल है मान लीजिए इस सर्कल में मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, 6 सर्कल है। तो 6 सर्कल प्लेट में आपको 4th सर्कल पे मूव करना है, इसको रेफरेंस बनाना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे आप पहली सेक्टर आर्म को आप यहाँ पे रखेंगे और दूसरी सेक्टर आर्म को, चूंकि दैट कैन मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो दूसरी सेक्टर आर्म को आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। मतलब आपकी क्रैंक इनिशियली यहाँ पे थी, आपने क्रैंक को इस तरह से रोटेट किया, फर्स्ट रोटेशन, देन सेकंड रोटेशन, देन थर्ड रोटेशन, देन फोर्थ रोटेशन, देन फिफ्थ रोटेशन, देन सिक्स्थ रोटेशन। नाउ सेक्टर आर्म आपकी इनिशियली यहाँ पे थी, नाउ इनसाइड द सिक्स्थ होल सर्कल यू हैव टू मूव ऑन द फोर्थ वन। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन। तो पहली जो सेक्टर आर्म थी ये आपका रेफरेंस था, तो दूसरी जो सेक्टर आर्म जब पुट करेंगे आप यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब मान लीजिए ये जो 4 होल्स इन 6 होल सर्कल, अब देखिए आप इसमें से कोई आपके पास 6 होल सर्कल की प्लेट अवेलेबल है क्या? इनमें से देखिए मिनिमम जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज ऑफ 15, हम यही ज्यादातर यूज करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो प्लीज आप इसी पे फोकस करिए, ठीक है। मिनिमम होल सर्कल भी आपको जो अवेलेबल है दैट इज ऑफ 15 ओनली, ठीक है। मतलब आपको 6 होल सर्कल की प्लेट अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये, दिस इज 4/6 है, थोड़ा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ सो इट बी इजी फॉर यू। 4/6 जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सबसे पहले 1 से करूंगा, तो 1 से करूंगा तो अगेन इट विल बी 4/6 ओनली, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 12। तो 12 होल सर्कल की प्लेट अवेलेबल है क्या आपके पास? नहीं, क्योंकि मिनिमम ही 15 है, ठीक है। नाउ इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वी आर मूविंग 4/6 इनटू 3/3, सो दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 18। देखिए 18 वाली अवेलेबल है क्या आपके पास? देखिए 15, 16, 17 एंड 18 होल सर्कल आपके पास अवेलेबल है, तो क्या करना है आपको,
18 होल सर्कल की प्लेट को आपको सर्च करना है और उसमें रेफरेंस लाइन से आपको 12th होल सर्कल पे मूव करना है। मतलब पहली जो सेक्टर आर्म होगी आपकी वो रखेंगे आप रेफरेंस पे, क्रैंक भी वहीं पे होगी आपकी। पहले आप फुल रोटेशन कर लीजिए क्रैंक के 6 फुल रोटेशन, आफ्टर दैट क्रैंक को वापस यहाँ पे ले आइए। अब आपको कितना मूव करना है कि 18th होल सर्कल में आपको 12th होल पे मूव करना है। ठीक है, तो आप दूसरी जो सेक्टर आर्म है, पहली सेक्टर आर्म कांस्टेंट है, दूसरी को मूव करिए और 12th होल सर्च करिए कि 12 नंबर पे होल कहाँ है इन 18 होल सर्कल। तो जब आप इसको देखेंगे, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। दैट इज 15, दिस इज 16, दिस इज 17 एंड दिस इज 18। तो ये तो आपका रेफरेंस हो गया। दिस इज फर्स्ट, दिस इज यहाँ पे आपकी अभी एक सेक्टर आर्म है, ठीक है। और क्रैंक को भी मान लीजिए कि आपने पूरा 6 रोटेशन इस तरह से कर लिया है, ठीक है। तो आप 6 रोटेशन करके आप उसको वहीं पे ले आए हैं। नाउ कितना मूव करना है आपको, कितना एंगुलर पे रोटेट करना है। तो पहला ये, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज 12। तो दूसरी जो सेक्टर आर्म है, नाउ यू जस्ट रोटेट दिस वन, ठीक है, और आप उसको यहाँ पे लाके उसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप इस तरह से मूव करेंगे तो अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग कि देखिए आपका इसका आप इसको क्या कर रहे थे, दिस वाज द फर्स्ट रोटेशन, ठीक है, दिस इज सेकंड रोटेशन, दिस इज थर्ड रोटेशन, दिस इज फोर्थ रोटेशन, दिस इज फिफ्थ रोटेशन ऑफ द क्रैंक, दिस इज सिक्स्थ रोटेशन ऑफ द क्रैंक। 6 रोटेशन हो गए। नाउ 7वां रोटेशन पूरा नहीं करेंगे, बट 7वें रोटेशन में पहली सेक्टर आर्म को आप यहां रखेंगे और आप 12th होल सर्कल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 12th होल सर्कल जिस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया और दूसरी सेक्टर आर्म को आप वहां पे ले जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपने फिक्स कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ है आप जब इसको रोटेट कर रहे थे तब क्या हो रही थी, आपके ये वॉर्म व्हील भी क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके 6 फुल रोटेशन पे आपके 6 टीथ, तो यहाँ से मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो टीथ है आपका वो पास हो चुके हैं। नाउ 6 एंड 7 के बीच में अभी आपका जो 6 और 7 जो है, नाउ दिस इज इन कांटेक्ट ओवर हियर, ठीक है। तो अब जो आपका वर्क पीस है वो उतना अमाउंट रोटेट कर चुका है, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे क्या करिए कि मशीनिंग करिए, टूल को स्टार्ट करिए, ठीक है, टूल को फीड दी, टूल को स्टार्ट करिए, रोटेट करिए एंड देन यू गिव द फीड टू द वर्क पीस, ठीक है। अब ये रोटेशन नहीं होगा, इसमें रोटेशन आप कर चुके हैं। नाउ वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, नाउ अगेन यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने क्रैंक को उठा के, अब क्रैंक को उठा के आप यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। क्रैंक को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, क्रैंक को उठा के आप यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्रैंक को रोटेट कर सकते हैं। नाउ अब इसको आप मान लीजिए कि ये पहली सेक्टर आर्म थी, ये दूसरी थी। अब मान लीजिए ये पहली सेक्टर आर्म है, या फिर क्या करिए कि इस सेक्टर आर्म को रोटेट करके आप यहाँ पे ले आइए, ठीक है। नाउ अनदर वन कैन बी फ्रीली मूव। तो आप इसको क्या करिए, पहले क्रैंक को पहला रोटेशन, then दूसरा रोटेशन, then थर्ड रोटेशन, then फोर्थ रोटेशन, then फिफ्थ वन, then सिक्स्थ वन। नाउ 6 रोटेशन यहां से कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करिए कि नाउ यू फाइंड आउट द 12th होल, ओके। तो 12th होल फाइंड आउट करने के लिए ये आपका फर्स्ट ये रेफरेंस हो गया। तो दिस इज फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो दूसरी सेक्टर आर्म थी वो जो यहाँ पे थी, अब आप उसको रोटेट करते हुए यहाँ पे लाइए और उसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, पहले आपका ये 6 होल था, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसके पीछे जो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 आपके टीथ हैं, 6 to 7 के बीच में कोई पॉइंट होगा जो यहाँ पे इसके कांटेक्ट में होगा, और उतना आपका स्पिंडल रोटेट हो चुका है, इसका मतलब वर्कपीस रोटेट हो चुका है। नाउ देयर यू आर डूइंग द मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है। आपको चीजें समझ में आई। तो सिमिलरली आपका यही होती है इंडेक्सिंग, सिमिलरली आपको इसके लिए करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग, ठीक है। I think it's clear to you guys. Next is the compound indexing. देखिए compound indexing में क्या है कि मान लीजिए कि आप सिंसिनाटी ब्राउन एंड शार्पे यूज कर रहे हैं, इसका देखिए ज्यादा यूज नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं तीनों पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका पूछा भी ज्यादातर यही जाता है, ठीक है, और अवेलेबल भी वर्कशॉप या फिर इंडस्ट्री में अवेलेबल भी यही रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 49 से अबव जाना है, मान लीजिए कि आप जो भी कभी कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सा एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, वही मैं ले लेता हूं, दैट इज x by 11/60।
ठीक है। एक्स इज द फुल रोटेशन, 60 इज द होल सर्कल एंड उसमें 11 नंबर पे होल आपको सर्च करना है। ठीक है, आप इसको हम इसको समटाइम्स हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, वो इसलिए बोलते हैं, अभी मैं बताता हूं कि 60 होल सर्कल जो प्लेट है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको मैक्सिमम जो है अवेलेबल है दैट इज 49 ओनली। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन डू लाइक, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इस पर डायरेक्ट आ रहा हूँ कि मान लीजिए कि इसको जब आप डिवाइड करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के, ठीक है, तो दिस विल बी लाइक 5/20 माइनस 1/15। देखिए आप जब एलसीएम लेंगे तो 20 और 15 में आपका एलसीएम बनेगा 60। ठीक है, 60 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 15 एंड दिस इज 4, सो दिस विल बी 11/60। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मतलब 11/60 आना चाहिए। तो आपने ये हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया एंड दिस फ्रैक्शन यू आर गेटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको, और दूसरी चीज इसमें जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो है कि दिस whatever the things that is coming in the denominator part it should be the whole circle, मतलब ये होल सर्कल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ये भी एक इजी वे हो गया, आपको हिट एंड ट्रायल भी लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये तो ध्यान है कि ओके वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाटएवर द थिंग्स इज अवेलेबल टू अस, मींस व्हाटएवर द होल्स इज अवेलेबल टू अस। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे आप, अब ये मान लीजिए फाइंड आउट कर लिया है हमने, तो 20th होल सर्कल जो है उसमें आप 5th नंबर होल पे जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज 15, दिस इज 16, 17, 18, 19, 20। अब ये जो 20 होल सर्कल है मुझे इसमें कौन से पे मुंह जाना है, सॉरी दिस इज 20 पे मुझे 5th होल पे जाना है। ठीक है, सॉरी 20 ये आपका रेफरेंस है। ठीक है, तो देखिए एक्स फुल रोटेशन तो हो चुका है, मान लीजिए यही आपका रेफरेंस है, तो पहले आपने यहाँ पे एक सेक्टर आर्म को फिक्स कर दिया। नाउ फॉर द सेकंड कि आप कहाँ पे लेके जाएंगे क्रैंक पिन को, या फिर सेकंड सेक्टर आर्म आप कहाँ पे फिक्स करेंगे, उसके लिए फर्स्ट 20th होल सर्कल में आपको 5th होल पे जाना है, दैट इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 5th। ये आपका यहाँ से लेके ये आपका एक, ये आपका 20th होल सर्कल पे चलेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, माइनस है या प्लस है, दिस इज माइनस। माइनस का मतलब है कि आप इसको रेफरेंस बनाएंगे, जो पॉइंट आपका यहाँ पे आया है अब आप उसको रेफरेंस बनाएंगे और उससे बैक साइड मूव करेंगे। बैक साइड मतलब अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे तो नाउ यू विल मूव क्लॉकवाइज। ओके, समझ में आया कितना मूव करना है कि 15th होल सर्कल पे आपको एक होल मूव करना है। अभी मैं समझाता हूँ उसमें, देखिए इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अभी आपका पहले क्या था, आपका 20th होल सर्कल पे आप यहाँ पे लेके आए थे, नाउ 15th होल सर्कल जो है उस पे आपका अब यहाँ से, अब इस बार यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा कि दिस इज फर्स्ट, ऐसा नहीं होगा प्लीज। ठीक है, अब आपको ये वाला रेफरेंस लेना है। जब आप इस रेफरेंस को लेंगे तो यहां से आपको माइनस था तो इस डायरेक्शन में मूव करना है, अगर प्लस होता तो आप इस डायरेक्शन में मूव करते, क्योंकि जो आपकी फ्लो की डायरेक्शन होती है मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप रेफरेंस ले रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते, लेकिन माइनस है तो आप बैक साइड मूव करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज मूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट जो टीथ आ रहा है, फर्स्ट जो सर्कल आ रहा है दैट इज दिस वन, तो ये आपका नाउ यू हैव टू फिक्स योर सेक्टर आर्म ओवर हियर। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपकी सेक्टर आर्म को फिक्स करना है। सो नाउ दिस विल बी द, दिस इज योर फर्स्ट सेक्टर आर्म, नाउ दिस विल बी द, दिस इज योर फर्स्ट सेक्टर आर्म एंड दिस विल बी योर सेक्टर आर्म, सेकंड सेक्टर आर्म। ठीक है, क्लियर हुआ, तो दिस विल बी द कंपाउंड इंडेक्सिंग। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इंडेक्सिंग तो मैं थोड़ा यहीं पे समझा देता हूँ कि डिफरेंशियल इंडेक्सिंग क्या होती है आपकी, कि देखिए मान जनरली क्या होता है कि आपका कंपाउंड इंडेक्सिंग या फिर सिंपल इंडेक्सिंग से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, बट स्टिल अगर मान लीजिए नहीं हो पाती है देन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक गियर असेंबली यूज करते हैं, मतलब गियर ट्रेन्स यूज करते हैं। तो गियर ट्रेन आपको सबको पता होगा कि गियर ट्रेन में क्या होता है कि नंबर ऑफ गियर्स आर वी आर माउंटिंग, व्हाई वी आर माउंटिंग द नंबर ऑफ गियर्स, बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं 40 फुल रोटेशन करने पे आपका 1 फुल रोटेशन ऑफ द वर्म इज हैपन। तो अब क्या करने के, अगर आपको इसको फिर से वेरी करना है देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फिक्स अ डिफरेंशियल असेंबली, डिफरेंशियल बॉक्स या फिर डिफरेंशियल गियर ट्रेन या फिर सिंपल सा गियर ट्रेन आप उसमें फिक्स कर दीजिए, मींस नंबर ऑफ टीथ माउंट कर दीजिए।
तो नंबर ऑफ टीथ माउंट करने से मतलब गियर माउंट करने से क्या होगा, आपका रोटेशन में वेरी हो सकता है, मतलब स्पीड जो स्पीड आपको मिल रही थी स्पिंडल की, दैट यू कैन मैनेज। ओके, सो फॉर दैट ओनली वी आर यूजिंग दिस डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। ठीक है, देखिए एंगुलर इंडेक्सिंग भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एंगुलर इंडेक्सिंग में क्या है कि आपका मान लीजिए कि आप वन फुल रोटेशन ऑफ worm wheel, sorry, worm wheel, that will be equals to 40 full rotation of crank। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वन फुल रोटेशन हो रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब आपका वर्क पीस कितना रोटेट कर रहा है 360 डिग्री। तो वन फुल रोटेशन ऑफ क्रैंक, वन फुल रोटेशन ऑफ क्रैंक विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी लाइक 9 डिग्री, मतलब आपको एक 9 डिग्री वन फुल रोटेशन अगर आपको क्रैंक करेंगे, क्रैंक का रोटेट करेंगे, जस्ट वी आर कन्वर्टिंग दैट वन ओनली, यही डिफरेंस है बस। तो आप जब एक फुल रोटेशन करेंगे क्रैंक का, दैट टाइम दिस स्पिंडल विल मूव 9 डिग्री ओनली। ठीक है, तो मान लीजिए 1 डिग्री में कितना आपका रोटेट होगा, दिस इज 1/9 फुल रोटेशन ऑफ क्रैंक। ठीक है, अब इस ये में इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको जब शुरू में एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि दिस इज योर, ये आपका एक सिलेंड्रिकल बार है, उस पर आपको 4 स्लॉट्स बनाने हैं, तो वहां पे मैंने एंगल का जिक्र किया था अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो यहां से क्या है कि फर्स्ट स्लॉट तो आपने कंप्लीट कर लिया, फॉर द सेकंड स्लॉट फॉर द फर्स्ट इंडेक्सिंग यू आर मूविंग 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, नाउ 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू दैट इज, ठीक है, दिस 90 डिग्री मींस दिस इज लाइक 1 डिग्री के लिए आपको 1/9 रोटेशन करना है, तो 90 डिग्री के लिए कितना रोटेशन करना पड़ेगा, दैट इज 90/9 मींस 10 फुल रोटेशन। ठीक है, 10 फुल रोटेशन करने पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज ऑफ द सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो 90 डिग्री आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, सो दिस 90/9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 10 फुल रोटेशन ऑफ द क्रैंक। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 90 ना हो के मान लीजिए कुछ कम एंगल होता, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इस तरह से 6 स्लॉट्स बनाने होते, तो 6 स्लॉट्स बनाते तो दैट विल बी एट 60 डिग्री होते सभी, तो 60/9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, दैट इज दिस इज 6 टाइम, दैट विल बी कंप्लीट। ओके, मतलब आपका 6 टाइम 9 into 6 दैट इज 54, हाउ मच रिमेनिंग, दैट इज 6/9। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि 9 का जो होल सर्कल है, प्लेट है, वो अवेलेबल है कि नहीं है, so just multiply with this by 2 first, so this will be 12/18। ठीक है, so this 18th whole circle plate is available, yes it's available, we have to move on the 12th hole of that। okay, so this is the angular indexing, fine। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आए हुए हैं वो देख लेते हैं। So the standard dividing head is equipped with the following indexing plate। ठीक है, ये आपकी indexing plate है। obtaining 24 divisions on a workpiece by simple indexing। इसमें से क्या आपको करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो what you have to do first is that is 40/24 division, so this will be equals to 1, that is full rotation, how much remaining, that is 16/24। देखिए आप इसमें डिवाइड और कर सकते हैं by 2 से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, so this will be like 8 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, so this will be equals to 1 to this 1 full rotation हो गया, this 16/24 will be 2/3। ठीक है, आपने 8 से डिवाइड कर दिया। now 2/3 फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाई, मिनिमम आपका 15 तो होना ही चाहिए, 15 होना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, so this will be 10/15। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका थोड़ा प्लेट्स की साइज अलग है, दैट इज for the disturbance। ओके, तो इसमें देखिए थोड़ा ये जो प्लेट्स हैं ये आपका अलग दिया है थोड़ा होल सर्कल्स, तो हम सबसे पहले मिनिमम जो अवेलेबल है दैट इज 12। तो देखिए 2/3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट, दैट इज 4 से, सो दिस विल बी 8/12। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 12 होल सर्कल अवेलेबल है, इट मींस आप प्लेट 1 यूज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए पहले ये देख लेते हैं। whole plate 2 can be used, okay, whole plate 1 and 2 can be used, whole plate 1 and 3 can be used, any of the 3 whole plate can be used। मतलब इसमें से सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना है कि
which plate we can use, whether it's 1 or 2 or 3 or any one of them or combination of that. तो पहले हम ये देख लेते हैं like 2 by 3 से multiply किया first with the 4, so this we are getting 12 whole circle, so it means that we can use the plate 1. Fine. 2 by 3 है आपका, we can multiply with the first minimum division is 21. Okay, so just we can multiply with the 7 and divide with the 7, so this will be 14 by 21, so it means that we can also use this plate. Okay, and next is for the 37 and 39 we can just multiply, that is 2 by 3 into 13 divided by 13, so this will be like 26 by 39, so it means that yes, we can use this third plate as well. Okay, so the option will be D, any of the 3 plate whole plate can be used. Fine. Next, one of the indexing plate that was asked in the ES 2000, one of the index plates of a milling machine dividing head has the following holes, that is 15, 16, this one. A gear wheel of 34 teeth has to be milled by simple indexing method. Okay, to machine each tooth, the index crank has to be rotated through. So just 40 by 34, that will be equals to how much? That is 1 by 6 by 34. ठीक है, fine. So this will be like 6 by 34. आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं, that is 2 से डिवाइड कर सकते हैं, so this will be 2 by 33 by 17. Okay, fine. So this will be like 3 hole, first 1 full rotation of the crank, 3 third hole on the 17th whole circle. Okay, so the option will be C. Fine. Next question is a milling machine has the following 2 index plates supplied along with the indexing head. ठीक है, तो ये आपके plates हैं. It is proposed to mill as per gear of 28 teeth using simple indexing method. Which one of the following combination of the indexing plate and number of revolution is correct? देखिए, गेट में पूछा गया है, पीआई में in 2005 and इसरो में भी पूछा गया है 2011. So just divide 40 by 28, so this will be equals to 1, and that is 12 by 28, that is the remainder. So one full rotation, definitely one full revolution is required, वो तीनों में है, चारों में है आपका, so this is okay. And 12 by 18, 12 by 28, तो 12 whole किसी में दिया नहीं है, so this will be like 4 से multiply divide कीजिए, so this will be like 3 by 7, 3 into 12, 3 into 4, that is 12, and 7 into 4, that is 28. So next is the 9 hole दिया है, तो 9 hole मतलब this is the hole in which the whole circle, so just multiply and divide with the 3, so this will be 9 by 21. So in the 21 whole circle we have to find out the 9th hole, so this will be option B. Fine. Okay guys, so thank you so much. I hope that this indexing now is clear to you, and this is a very easy topic for the in the milling machine or across the machining operations. So now I want that you should study this, and whatever the question that has been asked in the gate or engineering services, just go through it. Okay, thank you so much guys for joining this session.